You could be in a situation where you're expecting final admission offers from certain B schools, you are in their wait lists, or it could also be that you already have final admission offers from certain B schools and the question in your head is that, should I reappear for CAT? Should I retake the CAT exam? Well, this video is going to be a very structured approach in thinking about how do you choose for yourself whether you should go for the B schools which you have, or you should go ahead and reappear CAT. Should you reappear for CAT, ZAT and all of these exams? I will be covering a lot of factors. मेरा स्टाइल ही ये है, मैं बहुत सारे एंगल से बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके आपको हेल्प करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक you can find an answer to this question. Also, I'll be sharing with you my own story that how something similar happened to me and why therefore I am somebody who can really help you out in this. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. Now, I'll give you a quick snapshot of my own history. You know, when I had attempted CAT for the very first time, I had scored very well in ZAT. I had a 98.3 and I had a call from XLRI. Now, as you may know or you may not know, I have a massive speech problem. I stammer. And back then when I was an aspirant in 2015 and 16, my stammering was very bad. In fact, it was so bad that in my MBA admission interviews, instead of speaking out my answers, I used to actually scribble out my answers. So XLRI तो खैर मेरा नहीं हुआ. And उस साल my best final admission offer was from IMT. There was a program, there still is, called the DCP, the Dual Country Program of IMT Ghaziabad. Now इस program में जो scene था वो ये था that the first year you have to spend in Dubai and the second year you will be at home in India, and that was that. And I was almost certain कि चलो यार कर लेते हैं join, because एक attempt दे दिया है, program वैसे तो मन नहीं कर रहा है मेरा, but ठीक है हो जाएगा, MBA ही तो है क्या है. But then I sought advice. I spoke to somebody helped me and they helped me understand that no, what's the hurry about it? How about you take up a job and you reattempt it and then probably you can find something else, something much more worthy of you. And therefore eventually I went to IIM Udaipur, which was a much big step up from an IMTG's DCP program, which now you can see is a brilliant choice, because where is IIM Udaipur and where is IMTG? Anyways, my story is not the important thing. What I'm trying to tell you is that in this video, whatever analysis I'll be presenting to you is going to be a very accurate analysis. ये बहुत accurate और सही analysis होगी, because unlike somebody else who would have cracked the CAT in the first attempt and went to an IIM Ahmedabad or Bangalore or Calcutta in the very first attempt, they might not be able to understand the thought process which you have to go through, which I can understand because things have happened with me. Therefore, without wasting any further time, let me quickly take you through what does this choice really depend on. ये फैसला कि यार जहां एडमिशन मिल रहा है वहां चले जाएं या फिर एक साल और दें, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देखें, broadly this depends on 3 factors and here is what it is. Now the first thing is it greatly depends on your confidence. I'll explain to you वो क्या होता है. Second thing, it depends on your number of attempts and percentile in your latest attempt. That's that. And also a very interesting thing which I need to share with you, it greatly depends on your category, whether you're SC, ST, OBC, whatever. Depends on that. I'll explain to you how. Let me first of all talk to you about confidence. What do I mean by whether this choice, whether you should reappear for CAT depends on your confidence? देखो, simple सी चीज है, एक बहुत famous statement है and you need to inform me, pause this and write down in the comments whose statement is this, okay? The statement is, whether you think you can or you think you can't, you're always right. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, आप दोनों केसेस में सही हैं. कहने का अर्थ ये है, the meaning of what I'm trying to say is, the meaning of this quote is that it's all about how do you think it, which means if you're somebody who thinks that yes, I can reappear for CAT and I can crack the exam, I can score the same or even higher percentile than this, and I know if I work hard for this next 1 year, जो कि अब now it's only half a year. Your CAT is going to happen in November of 24. It's like how much? It's like 5 months away from you now. So it's not even an year, it's like half a year. If you have the conviction and the confidence कि I will do it, you are right. You will do it. You'll do something. And if you have this thing कि यार I'm thinking about whether कर पाऊंगा कि नहीं, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ये अगर ये ख्याल आने मन में तो नहीं कर पाओगे. बड़ी सीधी सी बात है, because इसमें ऐसा कोई, it's not that you have to climb a mountain Everest or something like that. This is dependent on you. The person who said this quote, my dear friends, was Mr. Henry Ford. And this is the truest thing which every educator should ideally tell to their students कि भाई at the end of the day, an exam like CAT is about your conviction. Hello. A lot of parents also watch my video, and therefore if you are a parent who is watching this, here is something which I need to say to you and also to the student, that CAT is not like an IIT JEE.
exam. An IIT JEE or a NEET, these two exams are more about how much can you cram, कितना आप याद कर सकते हो, कितना सब कुछ याद है. CAT तो वैसा है ही नहीं. CAT is all about how can you apply the basic concepts of math and English जो कि आपको स्कूल में या फिर थोड़ा बहुत extra which you have to study. It's all about that, which means that when it's an exam that is so simple in terms of what it is asking from you, it's actually about how clear, clean and chilled out you are in your head. I would not say the same thing about an IIT JEE or a NEET, because there it greatly depends on how much your scores have been in your school, how much is this, how much can you remember and retain and all of those things. अगर वो नहीं है अच्छा, अब वो एक साल में चेंज भी नहीं होने वाला है. CAT में नहीं है, इसलिए ये. दूसरी चीज, before I go to the next point of number of attempts, there is one thing which you need to clearly understand. Before you start to think some things like, you know what, मैंने एक attempt तो दे दिया है, अब second attempt देता हूँ या नहीं. The first thing which you need to really ask yourself is that, hello, was your first attempt even a genuine attempt or not? Please don't think that, okay, just because you went for the exam and you wrote the exam, that is equal to one attempt. No, for all you know, आपने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी. तो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो उस चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस को गिराइए मत कि यार मेरा तो कैट में स्कोर ही नहीं आया, मैं तो you know will I be able to score well or not? अरे, did you study? Therefore I am presenting to you a checklist that before you question yourself, hello, as an educator my job is also to lift up your spirits. मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि I'll just come and I'll make tier 2 B schooler repeat and then I'll say that you have to do a self evaluation, and self evaluation के अंदर जो भी आपका आंसर होगा वो देख लेना, and you speak to somebody who is a senior, speak to them about their B school as if the senior is going to say हाँ नहीं हमारा ये जो स्कूल अच्छा नहीं है. तो वो वाली बातें नहीं करूंगा मैं. My job is to lift up your spirits. First of all, follow this checklist and understand whether your first attempt or whichever attempt was your last attempt, whether it is even a true representation of who you are, of what your level in CAT is or not. First thing which you need to check is that भाई क्या आपने अपने CAT prep को इस साल at least 90 days दिए भी थे कि नहीं. Hello, it's very important. I have seen students, there are certain students, in fact a lot of students and a lot of seniors who just like come out and they brag and do things like that. You know what, I studied for CAT for like 2 weeks and I cracked it. यार वो आता था, मैंने तो सिर्फ यार मतलब 2 हफ्ते मतलब मैंने स्टडीज करी और मैंने सिर्फ मतलब like 4 हफ्ते स्टडीज करी. नहीं, उनको फॉलो मत करिए, वो एक्सेप्शंस हैं, होंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर लाइंग. हेलो, IITians and these genius minds, जो कि जीनियस हैं वाकई यार, उसने अगर क्रैक करा है IIT, कुछ बात है उसमें. He is not a joke or she is not a joke. Therefore, do not follow them. Follow the general crowd. 90 days भी मैं कहता हूँ कम है. 90 days मैंने इसलिए यहाँ पे करा है कि एटलीस्ट 90 days, एटलीस्ट 3 months तो आपने किया था कि नहीं करा था. 3 months मैंने इसलिए रखा है, 1 month for QA, 1 month for DILR, 1 month for VARC. That is that. It could even be 180 days. मगर if it has happened that आपको जब CAT लास्ट डे कुछ हुआ, आपको आइडिया है कि अच्छा यार वो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, I have to study, तब अगर आपने लास्ट 4 हफ्ते में you have started to study, then that is not a true representation of how much can you score. उसके बाद अगर आपकी 80, 85, 90 percentile भी आ गई है, that is not the true representation of who you are. My dear friends, if you study for half a year, you can score way more. Second thing which you need to check, my dear friends, did you write at least 30 mock tests? एक कम नहीं, 30 mock tests लिख के थी कि नहीं? Ideally, my dear friends, toppers, they write 50 mock tests. They purchase a mock test series of one institute, say for example a CL Educate and something else also, and they write 40-50 mocks. That is that. उतने लिखे थे भी कि नहीं, अगर mock test ही नहीं करे practice, आपको exam taking strategy ही नहीं आती है, therefore no wonder your exam didn't go well. Therefore you have not even reached the peak of your potential. Second thing, at least 2/3, 2/3 of the mock test which you took, उसका in-depth analysis करा था कि नहीं करा था. तो अगर 30 mock tests, I am advising कि at least 30 mock tests होने चाहिए थे. at least 20 mock tests को बैठ के 4 घंटे 5 घंटे बैठ के analyze करा था कि नहीं, कि मेरे किस किस्म के सवाल गलत हो रहे हैं, which kind of questions I am doing wrong, which kind of questions I am doing right, the ones which I am doing right, is there a shortcut for it so that I can spend lesser time on that and a lot of things, and then go back and revise everything. Did you spend that much time? If not, even if you've written 30 mock tests but you've not analyzed any of them, makes no sense. It clearly means you can do way more. आपकी जितनी परसेंटाइल अभी है, आप उससे 5-10 परसेंटाइल तो ऊपर खींच सकते हो. That's that. Fourth thing is that, my dear friends, by the end of your preparation of CAT, जब आप CAT लिखने जा रहे थे इस साल, क्या कोई एक सेक्शन ऐसा था जिसको आप हक से कह सकते थे यार ये मेरी स्ट्रेंथ है? Does not matter how much you scored in it eventually. My question is, was there even any one section in which you were saying that this is my strength, and one section in which you were saying that यार ये doable है, as per the exam I'll be able to handle it? एक चाहे weakness
भी हो चलता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, माई वीकनेस डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर वाज QA. क्वांट में ना बहुत वीक था, मगर VARC मेरी अंग्रेजी बहुत ठीक, बहुत बढ़िया थी. इनफैक्ट मॉक्स में अंग्रेजी में मैं 97 96 लेके आ रहा था उस समय. ऐसे क्या 96 97 98 तक मैं लेके आया हूँ. आई कैन स्कोर एंड फ्रीक्वेंटली लाता था. दैट्स दैट. ये था कि नहीं, अगर मान लो टिल द डे ऑफ द कैट इफ यू आर सेइंग दैट नहीं सारे सेक्शंस ही मेरे वीक थे या फिर किसी में भी मैं बहुत श्योर नहीं था, तब भी अभी आपके पास चांस है. बिकॉज हर इंसान का, एवरी स्टूडेंट हैज वन इनहेरेंट सेक्शन जिसमें वो अच्छा होता है, या फिर एटलीस्ट बाकी जो 2 सेक्शंस है उनसे तो बेहतर ही होता है. आइडेंटिफाई दैट, रीच दैट पॉइंट व्हेन यू कैन कॉल वन सेक्शन as your strength, then write your CAT. that is a true attempt for CAT. okay, and the last thing my dear friends is that ये तो बात हो गई CAT की, कि CAT ये CAT वो CAT ये. मेरा सवाल ये है कि क्या आपने किसी GDPI प्रोग्राम के लिए एनरोल करा था कि नहीं करा? बिकॉज हो सकता है that you might have scored great in CAT, but at the end of it when you went for your admission interviews you failed miserably there in the admission interviews because you didn't prep well for the interviews. आपको बस ये था कि यार कोई नहीं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर, सॉरी आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर द CAT एग्जाम ना, बस हो गया, अब इंटरव्यू तो हो जाएगा. तो शायद हो सकता है आपने सब सही करा था फॉर द CAT, आपने मॉक सही लिखे थे, सब कुछ करा था, आपने प्रॉपर एनालिसिस करा था, ये वो इंटरव्यूज में आप लटक गए. मेरे साथ यही हुआ था. XLRI का कॉल आ गया था, बढ़िया मस्त, इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा. इन द सेंस मैंने HRM एज अ स्ट्रीम को समझा ही नहीं कि भाई HRM के इंटरव्यू में मैं जा रहा हूं. आई कैन नॉट से दैट HRs दे डू दिस एंड दैट. नो, आई हैव टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे डू. आई डिडंट डू इट. आई हैव नो शेम इन एक्चुअली सेइंग दिस ओवर हियर दैट आई फेल्ड बिकॉज़ आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट. तो व्हाइल आई कैन से दैट हां अरे वो बहुत स्टैमर भी करता था ना, मैं तो स्क्रिबल कर रहा था, तो व्हाई वुड दे एडमिट मी? नहीं, आपके पास कंटेंट भी तो नहीं था, मेरे पास कंटेंट भी नहीं था. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 चेकलिस्ट देख लीजिए. इफ यू आर अ पेरेंट हु इज वाचिंग दिस, आप प्लीज अपने चाइल्ड से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या ये 5 चीजें ठीक से करी थी कि नहीं करी थी. द रीजन व्हाई अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव स्पेंट ऑन गिविंग यू दिस इज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फेल हियर एंड दे अज्यूम कि हाँ हमने तो सब करा था बट नहीं हुआ. तो ये है. अगली चीज आते हैं भैया, अब एक है खेल. ये जो फैसला है दैट वेदर शुड आई रीअपियर फॉर CAT, should I take CAT next year or not, should I give one more attempt to CAT? The answer greatly depends on your number of attempts जो आज हैं आपके, और परसेंटाइल कितनी है. भाई देखो, let me speak about कितने attempts पे आप आज हैं. सीधी सी बात है. I'll start with the simplest advice for me to give. मेरे लिए सबसे आसान एडवाइस है फर्स्ट वाली. अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, my dear friend, irrespective of your percentile, आपकी चाहे 60 परसेंटाइल हो, 60 परसेंटाइल हो, 70 परसेंटाइल हो, 80 परसेंटाइल हो, 90 हो, 95 हो, 97 हो, ती भी आपकी हो, irrespective of the percentile, my generic blanket advice to all is please pick up a job and repeat CAT. Hello, understand this. My job as an educator is not to give you global ज्ञान and say that देखो जी तुम्हारे ऊपर है, फैसला तो तुम्हारा है. नहीं, my job is also to prescribe you. I cannot make videos for you wherein I'll just give you open-ended ज्ञान and say now you think. No, I have to prescribe, and my prescription to you as a genuine educator is that please reappear for CAT if this is your first attempt. If you are in my Telegram group, join it. If you are not, students ask me this question, I send them voice notes and I clearly instruct them and I scold them about this कि भाई तुम्हारा first attempt है, you have no business to come and say to me that sir but you know what, I cannot attempt it again. No, what are you saying yaar? You attempted CAT, you have an ambition, and तुम एक attempt के बाद you want to say कि नहीं हो रहा मेरे से. Why? The reason why there is no way you can say no to a second attempt is this. Understand this my dear friend, because CAT gives more marks, sorry, the B schools, the IIMs give more marks if you have work experience. Most B schools, most IIMs, they have an admission criteria in which the score which you get after your MBA admission interviews, the composite score, it also has 5 marks or 6 marks or 4 marks for your work experience. The sweet spot of your work experience is 2 to 3 years. अगर आपका 2 से 3 साल वर्क एक्सपीरियंस है तो उस वर्क एक्सपीरियंस वाले कंपोनेंट में तो आपको सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं. तो कोई चांस ही नहीं है कि आप दोबारा ना दें, बिकॉज बड़ा सिंपल सा उसका एक स्ट्रैटेजी है कि भाई जल्दी क्या हो रही है, तो जॉब पकड़ो, 1 साल प्रिपेयर कराई है तुमने, बेसिक्स थोड़े तो आते ही होंगे, तुम्हें नहीं भी आते होंगे कोई बात नहीं, 1 साल और दो, 5 मंथ्स और दो, जो भी दो, जॉब के साथ दो, वर्क एक्सपीरियंस भी लोगे, MBA में ज्यादा समझ आएगा, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस के साथ जब आप जाते हो, when you walk into your MBA program with work experience, my dear friends, you get much more clarity of what is being taught in the classroom. Therefore, it makes very much sense for you to take a job and appear for CAT. Again, if you're a parent who is watching this, don't let your child make this mistake. Don't follow anybody else who is saying that, you do a self-evaluation or do this and that. No, this is all you have to do. No self-evaluation in this. If it is your first attempt, it is a prescription you have to take CAT again. No business saying that, yaar, कि
तुम देख लो, नो नो नेवर, दैट्स दैट। नाउ लेट मी गो टू द पॉइंट ऑफ सेकंड अटेम्प्ट है तुम्हारा, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, तुम्हारा सेकंड, अब मैं सेकंड अटेम्प्ट फिर कह रहा हूँ, देख लेना फ्रॉम दिस लिस्ट व्हिच आई हैड शेयर्ड कि वो जेन्युइन सेकंड अटेम्प्ट है या फिर बस ऐसी मतलब हवाबाजी का फर्स्ट अटेम्प्ट था तुम्हारा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब करा और तब है, तब आ जाओ इस पॉइंट पे। वो ये है भैया, अब इस पॉइंट पे तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है। योर चाइल्ड और यू हैव टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट, देयरफॉर थिंक। माय जॉब एज एन एजुकेटर इज टू ऑलवेज रेज योर एम्बिशंस। तो अगर मेरे पास आओगे तो मैं कहूंगा यार झक मार के पढ़ाई करो, 1 साल की तो है बात, 5 महीने की तो है बात यार, लाइफ लॉन्ग काम आएगा तुम्हारे, क्यों नहीं पढ़ोगे? व्हाई नॉट? अगर ऐसा एक इफ यू हैड दैट एम्बिशन दैट यू रोट कैट फॉर 2 attempts, now यार do it again. Therefore my advice in this is very simple. I would suggest you continue your job. I hope you have a job. Second attempt में खाली मत होना, अगर हो भी अब ले लो जॉब यार, कोई हर्जा नहीं है। गैप ईयर एक्सप्लेन हो जाता है एमबीए इंटरव्यू में, if you are honest about it, गैप ईयर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है? Join my Telegram group, I'll help you out over there for free, कोई बात ही नहीं है। And you could repeat. I was interested to say here that you should instead of this could. I wanted to say should, but then somebody will say कि यार ये तो ज्यादा ही ज्ञान दे रहा है कि जी ये करो वो करो। बट हाँ, मेरे ख्याल से if you were to ask me, you should attempt, because 2 अटेम्प्ट में भी कोई जा नहीं रहा है तुम्हारा, बल्कि अच्छा ही है। थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते तुम्हारा एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो यू विल गेट इनटू दैट स्वीट स्पॉट। भाई 2 साल से ज्यादा का अगर 2 to 3 years का तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है तो तुम तो उस स्कोर में स्वीट स्पॉट पे आ गए। और फायदा क्या है उसका? व्हेन यू विल गो इनटू योर एमबीए एडमिशंस, यू विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द lateral placements. Lateral placements are the placements which happen specially for the ones who have more than 2 years of work experience. You get higher salaries for that. This happens especially if you are at a good B school like a top 5-6 IIMs or some XLR or this and that. तो वो भी फायदा उठाओ, क्यों नहीं लेना चाहिए? अब बात करते हैं भैया, अगर तीसरा अटेम्प्ट हो गया है आपका तो क्या काम है? अब इसमें थोड़ी ना this has some storytelling. Now here's the thing. Here I would say, see, as I had said to you here, that it's not just about attempt, it is also about percentile क्या आ रही है। तो अब देखो यार, percentile की चीज है। Okay, first of all, why am I talking about percentile and not speaking about which B school you have an option from? You know, somebody may ask me that, sir, but अब इस स्टेज पे परसेंटाइल की क्या बात कर रहे हो? अब तो ये बात मतलब होनी चाहिए कि यार सर ये वाला मेरे को आया हुआ है यहाँ से, शुड आई गो हियर और नॉट? नहीं, परसेंटाइल पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माय डियर फ्रेंड, द वेरी रीजन व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज बिकॉज समवेयर यू नो यू आर नॉट satisfied with the final admission offer. Am I wrong or am I right? Or sorry, am I right or am I right? That's why I'm saying this. तो इसलिए वो तो मुझे समझ आ गई है। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर if your family is watching this video, the clear answer is you know that you're not very happy with the final admission offer. If you are, therefore let's step one step back and let's see percentile क्या थी तुम्हारी। अच्छा, when I'm saying if above 90 and if below that much, this is for general category। मैं general category के लिए कर रहा हूँ बात। SC ST जो है, you can understand कि तुम्हारे लिए ये क्या होगी, and तुम्हारे लिए I have a special section also which I will be speaking about। अब भाई यार देखो, सीधी सी चीज है, if your percentile is above 90, you have to make a choice. Should you join your best converted school or should you drop the idea of MBA altogether? मैं तुम्हें ना थर्ड अटेम्प्ट के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में जाने को I will not say to you. You might think that यार ये तो हर बात पे कह रहे हैं कि जी एक और अटेम्प्ट ले लो, क्या हर जाए, ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो मतलब बावले ही हो गए कि भाई एक और अटेम्प्ट, ऐसी बात नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैं तुम्हें फोर्थ अटेम्प्ट की बात करूंगा नहीं, because that I will explain why in this point when I'll be explaining that if your score was low तो क्यों नहीं, because CAT ऐसा एग्जाम है नहीं जिसके लिए तुम्हें 3 या 4 अटेम्प्ट करने की जरूरत हो, frankly if you were to ask me। तो अगर तुम चौथे अटेम्प्ट तक जा रहे हो और तीसरे अटेम्प्ट में भी अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ है तो भैया तुम्हारा चौथे में भी क्या ही होगा मुझे मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं तुमको 1 साल और I will not give you that pain कि नहीं I am prescribing you should go for, no, I will not do that। Therefore 90 परसेंटाइल अगर आई है तुम्हारी तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा एक ठीक ठाक स्कूल मिल गया होगा तुम्हें, एक रिस्पेक्टेबल नेम, कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब वो तुम्हारे ऊपर, वेदर यू वुड फील हैप्पी जॉइनिंग दैट स्कूल और यू विल नॉट। नाउ इफ यू आर समबडी हु इज एट दिस प्लेस देन वेट फॉर दिस, बिकॉज व्हेन आई विल बी स्पीकिंग अबाउट अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ओवर हियर देन यू विल फाइंड योर आंसर कि भाई वेदर शुड आई जॉइन दिस स्कूल और नॉट। तो अगर तुम इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो, ये वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें एंड तक, बिकॉज एंड तक तुम्हें इस चीज का फैसला मिल जाएगा कि ये फैसला कैसे करा जाए, कि डिसीजन क्या करा जाए। अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि यार अगर तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट था और बिलो 90 परसेंटाइल तुम्हारी आई है, तुम्हारी थर्ड में भी तुम 90 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा कहना ये है यार प्लीज पॉन्डर ओवर योर रिलेशनशिप विद कैट। व्हेन आई एम सेइंग रिलेशनशिप कैट, आई एम ट्राइंग टू से अगेन द सेम थिंग व्हिच आई जस्ट सेड, दैट प्रोबेबली द वे यू आर अप्रोचिंग कैट और द वे यू अप्रोच्ड कैट इन द लास्ट 3 years is
इज नॉट करेक्ट. आइदर तुमको किसी ने ठीक से गाइड नहीं करा या फिर तुम्हारा माइंड उस डायरेक्शन में चल नहीं रहा है. बिकॉज एज आई सेड, कैट इज नॉट एन एग्जाम, इट्स नॉट अ टेस्ट which will take you more than 300. It will not. Therefore, at this point, you need to think about this कि यार whether this is for me, whether my relationship with this exam is good or not, or is there anything else. भाई देखो सुनो, out of the entire youth of India, only 2.5 lakh at max 3 lakh students appear for CAT. उसमें से वो 3 लाख में से genuine attempts जो करते हैं, जो कि you know the students who study, they are approximately 50 to 75,000 only. तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इंडिया का यूथ अगर कैट नहीं देगा, अगर एमबीए नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा यूथ का? बिल्कुल नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द जेन्युइन अटेम्प्ट्स, द जेन्युइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर एमबीए जेन्युइनली बाय स्टडीइंग हार्ड इज ओनली 50,000 to 75,000 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, बिकॉज आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री, देयरफॉर आई नो सम ऑफ दीस लाइक स्टैट्स. तो आपका कंपटीशन बेसिकली वो 50,000 75,000 चलो 90 से था, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि कैट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. तो सो देन प्रोबेबली फॉर दैट यू हैव टू स्पीक टू मी सो दैट आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, व्हाट एल्स कैन यू डू, हाउ कैन you make your life much more interesting? Because at the end of the day, if you've seen my YouTube channel, my entire thing is about what? I help MBA students create fulfilling careers without depending on placement. So my help to you is that, okay, without even going in for an MBA, without a placement, how can you build a career for yourself? That is what it is. Now my dear friends, now that you know this, let me just address one last thing कि अगर कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो क्या? अब ये इंटरेस्टिंग चीजें, इसके बाद तो और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग दे से टू मी, सर घर वाले नहीं मान रहे कि एक और अटेम्प्ट दूं, वो भी मैंने इसमें आंसर करा है. somebody who might say, सर उम्र हो गई है, शादी करनी है, सर क्या करें, उसका भी आंसर मैंने इसमें दिया है. somebody who might say that सर बट हायरिंग फ्रीज, थोड़ा हायरिंग ठीक नहीं हो रही ना, और मतलब कंपटीशन देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, उसका भी आंसर मैंने दिया है. डिटेल में बात करेंगे यार इस वीडियो के एंड तक. अगर मैं तुम्हें आंसर ना दिया तो कोई फायदा नहीं है. सब जो भी हो रहा है ना, जो मतलब आई एम क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस थिंग, इसका कोई यूज नहीं है. आप चलते हैं कैटेगरी. अगर तुम कैटेगरी स्टूडेंट हो यार तो मेरे लिए स्पेशल एडवाइस है, मगर पहले समझो, इन माई एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 8-9 years of being in this, is that category students, there are two kinds of category students, and this will be very controversial, this will hurt a lot of students, but I don't care because my objective is to give you the genuine insight, and that is that. First kind of category students are category beneficiaries, which means what? That they never score high because somewhere in their head they know यार मैं category student हूँ, मैं ना 85-91 percentile तक भी मैं ले आया ना, मुझे ठीक ठाक मिल जाएंगे कॉल, तो मुझे ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत. ये लोग वो हैं जो कि कैटेगरी का फायदा उठा रहे हैं और अपना एफर्ट ही कम कर देते हैं. दे एडजस्ट देयर एफर्ट बिकॉज दे नो दैट यार कैटेगरी का फायदा होने वाला है. दैट इज दैट. सेकंड स्टूडेंट्स आर कैटेगरी बाय चांस. दीज आर द स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स हु स्टडी हार्ड, दे स्कोर द बेस्ट परसेंटाइल. These category students, and you could be one who's scoring a 95, a 96, a 97, a 98 percentile. Great percentiles this. Because for these students, they are category students just by chance. हम तो अच्छे students हैं. वो बात अलग है that we are also SC/ST. उनके लिए their entire personality is not that, oh, you know what, we are SC/ST OBC. But for the first ones, it is the case. Now, why I had to say this is because whenever a student approaches me in my comments or in my group, they say to me that, sir, I am a SC and my score was a 94 percentile. ठीक है? And I say to them, यार तेरा first attempt था 94 percentile, आप OBC हो के लेके आए हो, that means you're a solid rock star. If you give one more attempt, तुम उस 94 को या जो भी परसेंटाइल है, मतलब 91 भी है तुम्हारी, उसको अगर तुम 95, 96 भी क्रॉस करा गए, the complexion of your calls will change. The kind of B schools which you will be having a call from will change entirely. That is not the case for a general student. उसके लिए वो चाहे 98 भी ले आए, बहुत एक्सेप्शनल भी ले आए, जरूरी नहीं है कि कॉल्स विल ड्रास्टिकली चेंज बिकॉज कंपटीशन वहां पे है. एंड आई विल बी एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट इट एट द एंड. बट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए तो भाई मैं कहता हूं, अगर 90 प्लस ला रहे हो ना यार, तुम 85, 86 भी लेके आ रहे हो, तुम अपनी 4-5 परसेंटाइल इंक्रीज कर लोगे, तुम तो क्या कॉल्स लाओगे. तुम तो कैटेगरी स्टूडेंट भाई तुम हो अगर, तो अटेम्प्ट दे लो. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबव कि कैसे कैसे होता है. अब मैं आता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट. बट बिफोर दैट आई वुड अर्ज you, if you have liked this video up till now, do not forget to smash the like button on this video so that YouTube knows that you want more of this analytical content on CAT, on your career and all of that. And also do not forget to please subscribe to the channel. It helps me, it helps you, so that I would appear more on your feed and you will be reminded at what things you need to do to upskill yourself and do really well in your MBA journey. Therefore do that. Moving on from there, let's now talk about certain other factors which are important, जो कि आपको इन primary factors में choice लेने में और फर्दर हेल्प करते हैं. भाई देखो, सैलरी की बात करते हैं. अगर आप वर्क
एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो। सैलरी से इवेलुएट करना तो बहुत जरूरी है, बेवकूफी होगी अगर सैलरी से नहीं इवेलुएट। आई हैव अ थंब रूल, ठीक है, एंड आई हैव सेड दिस इन वेरियस अदर वीडियोस एज वेल, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन वॉच मी मोर। इफ योर सैलरी इज बिलो 15 LP, अगर आपकी अभी की सैलरी CTC जो है पूरी CTC अगर वो 15 LP से कम है, you should aim for B schools wherein the potential to earn for you is 2.5x at least, मतलब आपकी सैलरी उससे 2.5x हो सकती है from that school। एंड अगर आपकी सैलरी 15 लाख या उससे ऊपर ऑलरेडी है तो then aim for at least somewhere around a 2x growth in your salary, आपकी सैलरी 2x हो जाए। I have used a word called potential। potential से मेरा अर्थ क्या है? I am not saying my dear friends that the average of that B school should be at least 2.5x, no, ऐसे तो फिर तो भाई तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि क्या, हेलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या उस बी स्कूल के टॉप 20 टॉप 30 परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स में रह के जो उनकी एवरेज है, क्या वो इतनी है कि वो तुम्हारी एग्जिस्टिंग सैलरी से 2.5 या फिर 2x ज्यादा है? अगेन आई वुड रिपीट दिस इन इंग्लिश फॉर माय ऑडियंस फ्रॉम साउथ इंडिया और फ्रॉम समवेयर एल्स, दैट ऑल I'm not saying that you have to check the average of that school and that average has to be above 2.5x or 2x. No, I'm saying in the placement reports, check that what is the average salary of their top 20% students or the top 30% students, and that should be what you should compare. If the top 20% of the students are having salaries which is at least 2.5x or 2x of your salaries, then you can make a choice to go there, because then my advice to you is that stay at the top of your batch, do well academically. How will you do well academically? I have always said this. If you're somebody who's expecting to go to a B school in this year, then my dear friends, you have to enroll for this program which I have handcrafted for you. मैंने आपके लिए एक program create करा, it's called How to B School. It is a program so that you can maximize your potential from MBA. You know, everyone says that you know what, you should be at the top of the batch, you should do well academically, placement अच्छे से, but कैसे करना होता है वो इस कोर्स के अंदर है। If you want to know इस कोर्स के अंदर मैंने क्या क्या किया है include, it is academics, summer placements, final placements, friendship, everything. Just go here on this page, check this section and you can check that इसके अंदर कोर्स के अंदर सब कुछ क्या क्या है। You can see the full detailed list of what are the videos which are there in this, covers everything, marketing, finance, everything. It also covers concepts from marketing, economics, stats, everything which prepares you. And it's not that you have to enroll for this course अभी and एक बार अगर आपका start हो गया MBA तो इस कोर्स का कोई वो नहीं फायदा। No, even if you have joined a school, even if your school is starting in the next 1 week, this will be helpful for you because this is going to help you throughout your first year. तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर भी हैं, this will help you. I will again get back to my point. My point was very simple. Check the salaries of the top 20-30 percentile of the college where you have an admission from. अगर वहां पे है तो जा सकते हो, हर्जा नहीं है, then effort मार के ऊपर रहो। अब आते हैं एक और important चीज है that you need to be clear about your why for MBA. आप MBA कर क्यों रहे हो? And usually 3 ही इसके होते हैं. Usually the whys are only 3 and I will be saying that to you कि वो क्या क्या है. And basis on your why you will be able to choose कि जो मैंने ऊपर आपको एडवाइस दी थी क्या वो satisfy होती है या फिर नहीं होती. For example, the 3 whys for your MBA is that probably you have it in your head that you know what, I have to go to a particular dream B school of mine. एक ड्रीम स्कूल आपके जहन में है कि यहाँ पे होके मेरे को आना है. भाई सीधी सी चीज. Each year I have seen students who leave the 3rd generation IIMs for some higher schools. I have also seen students who leave the 2nd generation IIMs, for example IMU, for higher schools. I have also seen students who leave IIM Lucknow, Kozhikode, Indore, Shillong for older IIMs. My dear friends, I have also seen and heard of students who leave IIM Bangalore and Calcutta for IIM Ahmedabad. Very few. ये होते हैं बहुत ही exceptions, but very few. मेरा कहने का अर्थात ये है कि ये उनके लिए है जो इस बात पे श्योर है कि किस बी स्कूल में जाना है. उनका why for MBA is that I want to get my MBA from this best or these best schools. तो उनके लिए है. Then you know your answer already कि अगर आप if you are very head fast, headstrong on this, अगर आप you are hell bent on the school, then you will have to leave your school. That is that. And ये सब होता है. Second thing is, if suppose you're okay with whichever school you go, but yes you have a dream job in your mind कि आपने जब MBA करने का फैसला लिया था तो you were very well informed about what jobs are there after MBA, which is what I also speak about in my course How to Be School. Therefore you should enroll for it. But if you're somebody who's very clear about the job, then obviously your choice of whether I should go for this B school or not, or whether I should give another attempt is hinged upon कि वहाँ पे वो jobs आती है कि नहीं. सिंपल सी बात है यार, obvious बात है ना. For example यार देखो, I'll give you very quick examples. अगर consulting is your aim, then you have to know कि भाई front end वाले जो होते हैं रोल, the
cream consulting roles, they come only in old IIMs, XLRI, FMS, SP Jain and similar institutes. ये just मैंने as an example दिया. Please do not say that अरे but आपने उस बी स्कूल का नाम नहीं लिखा, उधर भी तो आता है. अरे भाई मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि ऐसे चॉइस करते हो. और if you are saying that okay consulting में I have to go but I'm okay with a back end role as well, तो भाई और भी schools आ जाते हैं इसके अंदर. Then you have an IIM Udaipur, IIM Raipur, IMT and other important non IIMs as well. बहुत colleges आ जाते हैं. फिर उस हिसाब से can you, my dear friends, hello, can you please do two things? Go and check the placement reports and find out कि भाई क्या role आते हैं. It might sound obvious. Hello, if you are somebody from the family or you are the student yourself, I have to inform you, it might sound to you very obvious कि क्या बोल रहा है placement report. Obviously if मेरे को वहां से final admission offer है तो I will see the, नहीं देखते बहुत बच्चे placement report, they only go by the name कि यार वो name बहुत अच्छा है वहां चलते हैं, या फिर यार वो name अच्छा नहीं है. हो सकता है जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हो वहां पे आती हो, या फिर हो सकता है जहां पे आप चाह रहे हो कि मैं चले जाऊं बट वो कंपनी ही नहीं आती. सो इफ यू आर समबडी हु इज हेड फर्स्ट ऑन द रोल, ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत श्योर है कि कंसल्टिंग है. तब आपका सारा फैसला इस पे होता है, तब वो सब कुछ नहीं होता कि कितना क्या क्या, तब ये होता है. सेम वे इफ यू आर समबडी हु इज ऑप्टिंग फॉर फाइनेंस, हु इज वेरी श्योर अबाउट फिन, देन यू हैव टू नो दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स दे कम ओनली एट IIMs ABC, कुछ एक आध स्कूल और होंगे मैक्स टू मैक्स, बट ये तुम्हारा एम है. Whereas if you are seeing for other finance, for example corporate finance and etc., then you have other schools. You have FMS, IIM Lucknow, IIM Kozhikode, Indore, Shillong, XLRI, SP Jain, MDI, IFT, और भी नाम होंगे इसमें, और हो सकता है यहाँ पे भी और नाम. That is not important. I am just trying to give you examples of how you have to think about. Therefore, same way, अगर if you are thinking about marketing, branding, brand management के best roles are from FMCG organizations. You know it. It is HULs of the world. It is the Unilevers of the world. ये कहाँ आते हैं? ये कुछ टॉप IIMs और कुछ टॉप नॉन IIMs में ही है. IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, LKIS या फिर कहीं और. Whereas if you're open for DM, you can go virtually anywhere and आपको DM का क्वालिटी रोल तो मिल जाएगा ही. ऐसे सोचो कि आपको करना क्या है. तो अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, then you know कि अगर ऑपरेशंस है, then I know I have to go to IIT Bombay और IIM और some few more schools. That is that. तो अगर जॉब प्रायोरिटी करते हो, या फिर if you are somebody from the family who's watching this for your child and if you are very sure that okay I want that my kid should do this job, or suppose you know that okay my kid is saying that यार नहीं I have to do this job, तो क्या आप ऐसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या आप प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं. मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ इस वीडियो में, मैं आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकता. उसके लिए और वीडियोस हैं, उसके लिए कोर्स है मेरा कॉल हाउ टू बी स्कूल. एनरोल फॉर दैट, इट विल हेल्प यू. आई हैव नो शेम इन सेइंग कि यू नो यू शुड गो एंड एनरोल फॉर माय कोर्स. भाई शर्म की बात नहीं है, मैंने बनाया ही आपके लिए ताकि आपकी हेल्प हो. दैट्स दैट. देखो उसको जाओ. एंड आल्सो जॉइन माय न्यू टेलीग्राम ग्रुप. इट्स फ्री. आई गिव एडवाइसेस फॉर फ्री. आई शेयर माय वॉइस नोट्स एंड एवरीथिंग. सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी एट. वो है. अब आते हैं अगर आपका वाई फॉर योर MBA इज दैट ब्रांड में होके आना है, तो भी फिर आपके पास है आपका आंसर कि यार वेदर आई वांट टू गो टू सम IIM और सम लोअर टियर IIMs. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कॉल फ्रॉम अ लोअर टियर नॉन IIM, आई विल नॉट गिव एनी लाइक स्पेसिफिक एग्जांपल, बट यू आर लाइक यार कि नॉन IIM है, मगर चलो नॉन IIM में अगर मतलब XLRI भी होता फिर भी ठीक था, बट यार XLRI नहीं है वहां पे तो मैं हो जाता, मगर इससे अच्छा तो यार आई कैन गो टू सम IIM. तो जरूर लिखो एक बार कैट और यार आपको कोई यू कैन फाइंड एनी IIM, बट देन डू नॉट गो फॉर एनी IIM. देन यू नीड टू चेक दीस थिंग्स आल्सो कि भाई सैलरी वहां पे एटलीस्ट तुम्हारी 2x हो रही है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं. अगर यार फ्रेशर हो एंड इफ यू आर फाइंडिंग अ थर्ड जनरेशन IIM एंड यू हैव योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वुड से दैट एक और अटेम्प्ट दो. मगर अगर तुम्हें 2 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और तब भी यू हैव अ कॉल फ्रॉम अ बेबी IIM बट योर सैलरी विल इंप्रूव, तुम्हारी एग्जिस्टिंग, ऐसे भी होते हैं दैट इवन आफ्टर 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस द सैलरी इज ओनली 4 LPA. ऐसे भी बच्चे. तो अगर आपके 2, 2.5, 3 साल काम करने के बाद भी सैलरी अगर 4 लाख और 5 लाख ही हो रही है, तो बेबी और थर्ड जनरेशन IIMs में जाके एटलीस्ट 12 लाख 14 लाख हो जाएगी अगर आपने आप पे हार्ड वर्क करा. तो क्यों नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ. दैट इज व्हाई थिंक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एंगल्स. अब ये सब कहीं पे नहीं मिल रहा है आपको, और बिकॉज और सब जगह क्या मिल रहा है आपको कि जी देख लें आपकी इच्छा है या फिर ये है वो, थोड़ी उस किस्म की चीजें हो रही हैं विच आई डोंट नो व्हाई. और एक और चीज हो रही है कि एजुकेटर्स, MBA इन्फ्लुएंसर्स, दे डू दीज ब्रांड integrations with certain schools and those schools they themselves know they are not even good B schools to go for because these influencers are from top B schools, some good B schools, और वो खुद ना जाए वहां पे. बट जिस बाकी से जिस फ्रीडम से they come out and say that you know this is a good school, interesting school, you might want to go there, यार वो फिर जब आके then they say that यार you know third generation IIMs नहीं मिल रहे, तो वो थोड़ा it looks very weird that you are probably saying things about a third generation IIMs whereas you're saying that हाँ वो चले जाओ वहां पे ये दे दो. Makes no sense. Anyways, and you know कि ये क्या बात कर रहा हूँ मैं आपसे. That's that. Moving on, last
last 3 things, very important and very interesting things, and then we'll close this. भाई ये सबकी कहानी है या फिर बहुत लोग की नहीं. पहले आते हैं घर वाले नहीं मानेंगे. दैट मैं तो चाह रहा हूँ कि अगला अटेम्प्ट दूं, बट घर वाले मानेंगे नहीं. भाई देखो सीधी सी है चीज. इसमें भी 2 चीजें कि क्यों नहीं मानेंगे. इसके अंदर भी 2 चीजें, मैं वो भी अभी आई विल एक्सप्लेन. एक है कि घर वाले दे आर सेइंग कि यार IIM है ना, वो 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन है, वो छोड़, IIM मिल रहा है ना, चले जाना, क्या टेंशन हो रही है तेरे. अगर ऐसी बात हो रही है आपके साथ तो भी देखो ये चीज है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई तुम किस किस्म के हो. आई विल गिव यू एन आंसर ऑफ मैं किस किस्म का था. तुम्हें जानना होगा विच काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू आर, देन यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस. दैट इफ माय फैमिली इज एडवाइजिंग मी दैट यार यू शुड गो फॉर दिस IIM, यू नो व्हाट आई हैव टू डू. फर्स्ट नो योरसेल्फ, तुम क्या हो. पहले किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं हु नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. उन्होंने भैया पूरा मतलब रिसर्च करा हुआ है, उनको मालूम है किस बी स्कूल में जाना है या फिर किस जॉब रोल में आई वांट टू गो. जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा तुम्हें अभी फॉर वाई फॉर MBA में, कि कुछ को मालूम है कि ड्रीम स्कूल क्या है मेरा, वो क्लैरिटी है या फिर एटलीस्ट ये क्लैरिटी कि व्हाट इज माय ड्रीम जॉब फ्रॉम. तो वो हो गए. सेकंड फिर एक स्टूडेंट्स होते हैं दैट दे डोंट नो व्हाट दे वांट. उनको मालूम नहीं है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं उस लेवल तक, दिस एंड दैट. मगर दे ऑल्सो डोंट वांट देयर फैमिली टू से कि यार तू यहाँ चला जा और तू यहाँ चला. ये भी फंडा है. एंड देन देयर आर 3rd काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑल्सो दे डोंट नो व्हाट दे शुड गो फॉर, दिस एंड दैट, बट दे आर फाइन इफ देयर फैमिली इज एडवाइजिंग कि यार यहाँ चले जाए. एंड दे आर वेरी सिंपल शांत स्वभाव के लोग हैं. वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, आप कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हो. मैं जब इंजीनियरिंग में जा रहा था आई वाज दिस काइंड, आई वाज द टाइप 3. मैंने क्लास 12th में 11th में आई हैड नेवर इवैल्यूएटेड दैट व्हाट आई शुड डू, दिस एंड दैट. 11th में मैं जब आया तो माय फैमिली दे सेड टू मी दैट आई थिंक यू शुड डू इंजीनियरिंग. एंड आई वाज लाइक ठीक है, बिकॉज़ मैंने भी नहीं करा हुआ है अपने लिए इवैल्यूएट. तो आपने अगर कुछ करा है, इफ यू हैव सम दिस थिंग आइडिया फॉर मी, आई विल एक्सेप्ट इट. या तो ये होता दैट आई हैव सम आइडिया फॉर माय सेल्फ, तो नहीं है मेरे पास नहीं. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इफ यू आर समबडी हु योरसेल्फ हैव नो आइडिया एंड यू आल्सो हैव नो, और तुम्हारे अंदर वो ओके, एंड आल्सो यू हैव जीरो इंटरेस्ट टू आल्सो हैव सम आइडिया. अगर नहीं है तुम में इंटरेस्ट भी, व्हिच वाज मी एग्जैक्टली, कि ठीक है आपने कह दिया है कि यार यू शुड डू इंजीनियरिंग, आई विल नॉट इवन से एनीथिंग अबाउट इट कि मैं कर लूंगा. अगर उस किस्म की और अगर मिल रहा है तुम्हें कोई ठीक ठाक बी स्कूल तो चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है. क्या कर भाई, जब तुम्हें खुद का ही आइडिया नहीं है तो तुम किस, व्हाट इज योर ग्राउंड टू फाइट विद देम. आई एक्चुअली फाइंड सच स्टूडेंट्स दैट व्हेन दे से दिस थिंग टू मी, देन आई से टू देम ओके बट वेयर डू यू वांट टू गो, एंड दे से सर आई डोंट नो. मैं फिर किस बात की फाइट कर रहे हो यार, मैं घर वालों से. वो घर वाले हैं तुम्हारे, दे नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. यस दे माइट नॉट नो अबाउट द बी स्कूल्स बट दे आर नॉट वेरी स्टूपिड आल्सो इफ दे आर स्पेंडिंग ऑन योर दिस थिंग, तो फिर तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम ही क्या है फिर तुम्हें. तो वो वाली एक एंगल. अब ओके ये वाली चीज इट माइट साउंड वेरी मतलब कि यार ये किस किस्म की हो रही है कि यार ये फैमिली की बातें कर रहे हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव टू स्पीक टू स्टूडेंट्स. नोबडी एल्स इज एक्चुअली लाइक स्पीकिंग अबाउट दिस. अभी तो मैं और भी आऊंगा, आई विल बी स्पीकिंग अबाउट शादी एंड ऑल, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट व्हाट इज दिस गाय टॉकिंग अबाउट मैरिज टू इवैल्यूएट MBA स्कूल जाना चाहिए नहीं. ऐसे ही क्वेरीज होती हैं. अगर कोई जेन्युइन एजुकेटर है उसके पास क्वेरीज यही आती हैं, एंड इट इज सैड. नोबडी इज क्रिएटिंग दिस कंटेंट, बट चलो कोई बात नहीं, समवन हैज टू. प्लीज नो 2 थिंग्स. हियर इज माय एडवाइस टू यू, प्लीज नो 2 थिंग्स, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर योर माइंडसेट. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट जो मैंने बोला, इफ यू डोंट मेक योर ओन चॉइसेस somebody else will make it for you and then you have to be okay with it. तो अगर तुम दूसरे अटेम्प्ट में पहुंच गए हो और 3rd अटेम्प्ट में और तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें ना तो ये आइडिया कि कौन सा मेरा ड्रीम स्कूल है और ना ही तुम्हें आइडिया कि व्हाट इज माय ड्रीम जॉब, मेरी ड्रीम जॉब क्या है, तो फिर तो जो कह रहा है जाओ ना वहां पे. और सेकंड चीज है भाई देखो, व्हाई इज दैट अ पेरेंट इज फोर्सिंग यू, अंडरस्टैंड दिस. इसको अगर तुम समझोगे, देयर इज अ रीजन व्हाई अ पेरेंट इज फोर्सिंग यू एंड व्हाई यू आर फीलिंग फोर्स्ड माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज द फैक्ट इज, रिमेंबर दिस लाइन, लिख लो अगर तुम्हें ये अभी कहीं पे हो रहा है ऐसी चीज, अगर कोई प्रॉब्लम, यू नीड टू हैव क्लैरिटी फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, देन कन्वे दैट क्लैरिटी विद कन्विक्शन. इसमें मैंने 3 वर्ड्स को बोल्ड करा है जान के, बिकॉज ये 3 बड़े एसेंशियल पार्ट्स हैं. अगर हेलो 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 इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि फैमिली फोर्स कर रही है कि यहाँ चले जा, भाई सोल्यूशन उसका ये 3 पॉइंट्स में है. क्योंकि प्रॉब्लम शायद ये है कि पहली बात तुम्हें क्लैरिटी खुद नहीं है. दूसरी बात हो सकता है तुम्हें क्लैरिटी खुद हो दैट यस आई वांट टू गो टू दिस बी स्कूल, बट तुम उस क्लैरिटी को कन्वे नहीं कर पा रहे हो. यू हैव नॉट टोल्ड टू योर फैमिली दैट नो हेलो आई हैव अ प्लान फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू गो देयर बिकॉज दिस रीजन. और हो सकता है कि तुमने अगर कन्वे भी कर दिया है बट तुमने उसको कन्विक्शन के साथ कन्वे नहीं करा, उनको फील ही नहीं हो रहा कि यार इसको कुछ क्लैरिटी है अपने लिए. जाकिर खान की एक बड़ी फेमस एक वो है, आई सॉ इट ऑन विच शो, इट वाज इन KBC, दैट योर पेरेंट्स डोंट वांट योर रॉन्ग, दे जस्ट डोंट वांट यू टू सी पुअर, मतलब दे डोंट वांट यू टू बी पुअर. दैट्स वो यही कहानी है. तो अगर आप इतनी उम्र के हो, इफ यू आर अ 24-year-old 23-year-old एंड इफ यू हैव क्लैरिटी, कन्वे इट विद कन्विक्शन, यार कोई भी मानेगा बिकॉज दे नो दैट यू नो मोर. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सर्कमस्टेंस व्हेन स्टूडेंट्स दे से टू मी कि यार नहीं बट ये वो, तो
तो आपने आपको खुद आपको ज्यादा वो नहीं है, दैट इज व्हाई यू आर बीइंग फोर्स्ड, बिकॉज आपने खुद मतलब उनको नहीं करा। एंड पेरेंट्स डोंट वांट योर रॉन्ग, सो डू नॉट थिंक दैट अरे पेरेंट्स आर सेइंग कि ये करो तो इट्स रॉन्ग, नहीं, पेरेंट्स कुड बी करेक्ट। अगली चीज है बट सर भैया आई नीड टू स्टार्ट अर्निंग सून, ये भी मुझे बहुत क्लैरिटी मतलब होती है कि सर क्या करना है। मेरा पहला सवाल ये होता है भाई हाउ इज अर्निंग सून रिलेटेड टू एमबीए सून? अर्निंग सून और एमबीए सून से संबंध क्या है? बिकॉज एमबीए सून अगर आपने करा तो यू आर स्पेंडिंग मनी ना यार, यू हैव टू पे द फीस। तो ये लॉजिक समझ नहीं आता मुझे कि सर अर्निंग करनी है स्टार्ट, अरे भाई अर्निंग करनी है तो टेक अ जॉब ना, बिकॉज जॉब मिलेगी मान लो तुम्हें 4 LPA 5 LPA 6 LPA की, कुछ तो आएगा घर पे। एमबीए करोगे तो जो भी फीस है वो फीस विल गो अवे ना, तो ये मुझे समझ नहीं आया। देखो मेरा सवाल है इसमें आपसे कि यार देखो 2 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं, आई विल गिव यू 2 ऑप्शन दूंगा, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड योरसेल्फ की ज्यादा सही चीज क्या है आपके लिए। भाई 2 ऑप्शन क्या के लिए, इन दोनों में से क्या ज्यादा सही है कि आप आज 20 लाख की फीस दे दो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां से आप 10 लाख 11 लाख खींच तान के 12 लाख की वहां से लो आप इनकम खींच तान के बता रहा हूं वो भी। डू यू वांट टू गो टू एट सच अ स्कूल? और कॉन्ट्ररी ऑफ दिस इज प्रोबेबली अर्न 6 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 1 साल, मींस फाइंड अ जॉब एट 5 लाख और 6 लाख जो भी मिल रही है, जॉब लो, स्टडी, अर्न 6 LPA, देन गो टू अ हायर बी स्कूल wherein yes the fees is going to be slightly higher, go to a 25 LPA go to a 25 lakh की फीस वाला स्कूल, फॉर एग्जाम्पल an IIM Ahmedabad, a Bangalore, a Calcutta and L, and then earn 20 LPA from there। क्या ज्यादा सही है? एंड सेकेंड ऑप्शन में भाई वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस है कि अगर मान लो तुम सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्रैक नहीं कर पाए, एटलीस्ट यू आर 6 लाख पॉजिटिव, तुमने कमाए उस साल। तो अगर तुम्हारा रीजन ये है कि आई नीड टू स्टार्ट अर्निंग सून, तो भाई मेरा सवाल है अर्निंग के स्टैंड पॉइंट से फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा सही है कि सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही है? यू नो योर आंसर, देयरफॉर आई विल नॉट प्रिस्क्राइब स्टफ टू यू हियर, यू नो योर आंसर, दैट इज दैट। अब मैं आ जाता हूँ एक और बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज पे। सर उम्र हो गई है, शादी करनी है। अब मैं तो दोबारा रिपीट करने के सोच नहीं रहा हूँ, बिकॉज सर शादी करनी है, फैमिली वाले कह रहे हैं जी बहुत उम्र है तेरी, यार क्या करेगा, पागल है, 1 साल और देगा फिर मतलब फंसा रहेगा इसमें, उस साल हुआ नहीं हुआ तो क्या करेगा? भाई देखो मेरा सिंपल सा आंसर है और ये लॉजिक के साथ बताऊंगा तुम्हें, ऐसे भी नहीं कि हाँ जी देख ले ये हो। पहली बात तो यार देखो सुनो, तुम अगर मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना कि सर शादी हो गई है दिस एंड दैट, मेरा क्लियर एक आई एम ऑपरेटिंग विद अ assumption, that assumption is that you are right now 25 or 26 in age, whether you are a male or you are a female, तुम्हारी एज अभी है 25 या फिर 26, that is why you are even asking me this question कि सर क्या। अब एक चीज तुम समझो, अगर तुम्हारा MBA करने का एस्पिरेशन है ना, तो वो स्थिति जिसमें तुमको खुद होगी फील अंदर से कि हाँ अब मैं शादी के लिए सही हूँ, वो तब आती है when you are earning at least 20 to 25 LPA। हर इंसान का एक होता है कि यार नहीं ठीक है, अब मैंने एटलीस्ट ये है you know that this is how much I earn, I feel now I am okay, now I can do this man, this usually what I've seen and what I would expect from you, because again my job is to raise your ambitions। hello, I am not all about कि हाँ देखो तुम्हें ये सही लग रहा है तो ये कर लो, नहीं, मेरा काम है कहना भी तुम्हें कि भाई सुनो 20 लाख तो कमा लेना कम से कम, तब करना शादी किसी के साथ, क्या बात कर रहे हो, ये 16 लाख 17 लाख 18 लाख में कोई फन नहीं है यार। तो ये मतलब समझो आप, ठीक है। अब देखते हैं आगे की बात। तो टारगेट तुम्हारा है कि एटलीस्ट 20 लाख का मेरा CTC हो, आइडियली तो 25 लाख हो, तब भाई स्वाद आएगा शादी, ठीक है। अब फिर 2 चीजें आती हैं, समझो तुम किस उसमें हो। इफ यू चोज अ लोअर बी स्कूल, अब वो कुछ भी हो सकता है, लोअर मींस मतलब इट कुड बी एनीथिंग, तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम्हारे साथ ये चीज हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यू विल ग्रेजुएट समथिंग एट अराउंड 15 LPA एट एन एज ऑफ 27 to 28। अगर आप फैमिली भी है ऑफ द स्टूडेंट, वॉच दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर आपका सन और चाइल्ड इज ग्रेजुएटिंग एट 15 LPA एट द एज ऑफ 27 to 28, obviously they will spend the next 3 years to reach a 20 to 25 LPA। how they will either grow or they will switch, because इसके लिए तो you will have to switch। तुम्हें अगर 15 लाख से 20-25 लाख 3 years में होके आना है, तुम्हें स्विच तो मारना पड़ेगा, एक स्विच तो है ही उसके अंदर, वो करना है, which means वो 3 साल में ऑलरेडी तुम्हारी एज हो जाएगी 30 से 31 साल। that means जो मुझसे आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई शादी करनी है तो क्या करें, और 25 LPA सॉरी और 25-26 तुम्हारी एज है, वैसे भी अगर आज तुम एक लोअर टियर बी स्कूल ज्वाइन कर लेते हो, उसका भी फायदा क्या है, तब भी तुम्हारी शादी तो 30-31 में ही होगी मेरे दोस्त, उससे पहले क्या फन है, क्यों कर रहे हो, दैट इज दैट। ओके, अगेन अ लॉट ऑफ फैमिलीज विल नाउ बी वेरी एंग्री एट मी, ये हमारे बेटों को लाइन से उतार रहा है, या फिर यू नो व्हाट, ही इज कंप्लीटली मिसगाइडिंग आवर डॉटर्स की अभी शादी करने का क्या फायदा है। नहीं, ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कि अगर MBA में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा हो, एंड ठीक है, इफ यू फाइंड दिस इज रॉन्ग यार कमेंट्स में जाके बता दो कि नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, ये नॉनसेंस बात करते हैं आप, कोई फायदा
होगा नहीं, आपसे अच्छे तो वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आके बोल जाते हैं कि जी ये कर ले, वो कर ले, सेल्फ इवैल्यूएशन कर ले और तू कॉलेज वालों से बात कर ले, लिख दो यार जाके, कोई बात नहीं, विल हैव अ टॉक, सो इट्स ओके। तो ये कहानी तुम्हारी वैसे ही शादी 31 और 30 में ही होगी। वेयर एज इफ यू गिव इट वन मोर अटेम्प्ट, यू चूज अ बेटर बी स्कूल, फिर तुम्हारे साथ 5 स्टेजेस क्या होंगे, लाइफ कैसे तुम्हारी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। उसका आंसर ये है भाई, यू विल ग्रेजुएट एट समवेयर अराउंड 18 लाख टू 25 LPA। भाई अगर तुम IMU चले गए तो मिल जाएगा तुम्हें 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख। अगर ABC चले गए तो मिल सकता है 25 लाख, 30 लाख, ठीक है, ऐसा है। एंड अगेन एट द एज ऑफ सेम एज जो यहाँ ऊपर थी। सेकंड स्टेप क्या होगा तब तुम्हारा, या तो बिकॉज यू आर ऑलरेडी, या तो तुम उस स्टेज पे हो दैट यू ऑलरेडी अर्न इनफ, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू, कर लो, मैं शादी कर लो, होता ही है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, IIM उदयपुर, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट ईयर, तुम देखो कभी जाओ इंस्टाग्राम पे, यार इसकी शादी हो गई, ये तो अच्छा है, तो अभी मेरे साथ थी, या तो ये यू नो इट हैपेंस, ऐसा होता है। तब तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू कैन डू इट। वेयर एज और अगेन स्पेंड द नेक्स्ट 3 years टू वर्क इवन हार्डर, रीच अ 30 to 40 lakhs का रेंज, वहां पहुंच जाओ, एंड तब अगेन योर एज इज गोइंग टू बी द सेम, प्रोबेबली बिल्ड अ होम। अगेन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एंड जो वो मतलब जो सब होते हैं उसके किस्म के लोग, दे विल अब्यूज मी फॉर दिस, अरे यू आर एडवाइजिंग स्टूडेंट्स टू हैव अ होम एट दिस एज, नो यू शुड लिव इन रेंट। यार जो करना है करो, आई एम जस्ट गिविंग एन आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाट हैपेंस विद मी, व्हाट हैपेंस व्हेन माय स्टूडेंट्स आस्क मी दैट सर होम। भाई प्रैक्टिकली में तो स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली आस्किंग मी सर दैट वी वांट टू हैव अ होम आल्सो, जो हो रहा है आई विल एडवाइस यू द सेम, यू कैन हैव अ होम फॉर योरसेल्फ एंड देन अगेन यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स। तब तुम्हारी एज होगी 30-31 साल। ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम देखो मुझे किस मतलब किस हद तक आई हैव टू गो टू एक्सप्लेन यू अ सिंपल थिंग। आई होप यू अप्रिशिएट दिस, बट इवन इफ यू डोंट, इट्स ओके, इट इज माय जॉब टू डू दिस, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट लेवल्स आई गो डाउन टू एक्सप्लेन माय स्टूडेंट्स कि भैया तेरे को MBA में क्या करना है। सो MBA इज नॉट जस्ट अबाउट MBA, यू नो दिस इज द बी स्कूल यू शुड गो फॉर, और वेदर यू शुड, ये ऐसी हल्की बातें नहीं होती हैं बड़ी, दिस इज क्लोजली लिंक्ड टू अ लाइफ। दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो ऑन दिस। एंड लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद आप भी जाओ, आपको अभी तक देखो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, यू हैव योर आंसर। अगेन तुमको जहन में आंसर आ गया होगा कि हाँ यार जो भी अभी तक उन्होंने कहा मेरा आंसर ही है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया तो अब लास्ट में आ जाएगा। कुछ लोग आते हैं मेरे से जैसे, सर मुझे तो 99 पे भी कहीं कॉल नहीं आया, कंपटीशन तो बहुत हो रहा है, और प्लस सर मतलब वो भी नहीं हो रही सर, आजकल तो देयर इज अ हायरिंग फ्रीज, में हायरिंग नहीं हो रही, क्या करें भाई। मेरे सिंपल, आई हैव 3 पॉइंट्स फॉर यू ऑन दिस, 3 पॉइंट्स है, एंड ऑल ऑफ दीज आर माइंडसेट पॉइंट्स है, तुम्हें अपने माइंड में फिट करने होंगे। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे से टू मी सर रिपीट करने का फायदा क्या है जब कंपटीशन बहुत है और मतलब मार्केट स्लो। भाई पहली चीज है माइंडसेट, ये है कंपटीशन बहुत है, मान गया इस साल हो सकता है कैट एस्पिरेंट्स हो जाए 3.5 लाख, 4 लाख हो जाए, पता नहीं कितने हो जाए, हो भी सकता है, क्या पता यार। अपने आप को एक बात का, मुझे तो चाहिए एक सीट ना, एक सीट तो मिल रही है अक्रॉस IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा एंड L, उन तीनों इंस्टीट्यूट्स में या फिर उन चारों इंस्टीट्यूट्स में या फिर वो जो ऊपर के 5, 6, 7, 8 इंस्टीट्यूट है उसमें एक सीट तो है ही, मुझे भी एक ही तो चाहिए, मुझे किस बात की फाइट है। ऐसा माइंडसेट रखो। अर्जुन का तीर, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू से, अर्जुन का तीर, आई कैन ओनली सी द आई ऑफ द फ्लैट, एक सीट चाहिए, वो मिल जाएगी, मिल जाएगी। माइंडसेट जब तक ये नहीं लोगे, विनर का माइंडसेट क्या होता है, यही तो होता है, हटके माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट रखो भाई, मैं अपने स्टूडेंट को यही, आई ऑलवेज से ये माइंडसेट है, ठीक है। अगर माइंडसेट सही लगा गिव इट अ लाइक, अगर सही लगा सब्सक्राइब करो, अभी भी कर लो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, कर लो। सेकंड चीज है भाई देखो, एक और चीज है, ये हायरिंग विंटर, हायरिंग फ्रीज और थोड़ी हमारी इकोनॉमी स्लो है, ये है वो, यार ये सब बातें ना, ये दिस इज नॉट गोना रिमेन। ये आज है, जब तक आप ग्रेजुएट करोगे क्या होगा कुछ नहीं पता। इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट, क्या बात कर, वर्ल्ड लुक्स अप टू इंडिया। अगर आज है भी 2 साल बाद नहीं होगा यार, तुम शायद बहुत अच्छे होगे और होगा भी उस समय, हू नोस, बट दीस थिंग्स आर नॉट गोना स्टे फॉर लॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड योर MBA is gonna last a lifetime, understand it like that. And the final thing, my dear friends, is my main message to everybody. अगर आप अभी तक वीडियो में देख रहे हो और आप इनमें से कोई भी हो, आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, सेकंड अटेम्प्ट वाले हो, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ये लास्ट एडवाइस तो जी सबसे जरूरी एडवाइस दे रहा हूँ, देख लो क्या है। प्लेसमेंट जो होती है ना, प्लेसमेंट की जी ऑन कैंपस प्लेसमेंट, यार यहाँ अच्छी नहीं है वहां अच्छी है, भाई प्लेसमेंट सिर्फ इंडिया में ही होती है, ये बाहर कहीं नहीं होता कि प्लेसमेंट हो रही है कैंपस में। अगर इंडियन बी स्कूल में प्लेसमेंट है, प्लीज प्लेसमेंट्स को देखो एज अ बैकअप। ये मत बोलो हाई प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही, इतने बच्चे आर अनप्लेस्ड तो ये आजकल अच्छा नहीं, बी स्कूल अच्छे हैं, तुम बेवकूफ हो। किसने कहा है प्लेसमेंट लेके ही बाहर निकलना है भाई, ऑफ कैंपस मारो ना ट्राई, अपना कुछ कर सकते हो स्टार्ट की नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें लगेगा ये कैसी बातें, इतना आसान थोड़ी ना ऑफ कैंपस करना, हवा में बोल दिया, मेरा काम ही वो है, आई हेल्प MBA स्टूडेंट्स गेट द बेस्ट आउटकम्स। इट कुड बी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, इट कुड बी फ्रीलांसिंग, ग्लोबल कंसल्टिंग, you would earn much more, you'll have much more freedom. I consult various organizations in my space, that is how I earn. I don't
don't earn from YouTube, I don't earn from these courses and all. No, I consult companies in the space of education, because right from the for the last 8-9 years, that is the space I am in. वो मैंने space छोड़ी ही नहीं. That is what I do. That is how I earn. Can you do that? And I live a life of freedom. Or can you build something of your own during your MBA? Your MBA के 2 years is the best time to build an online startup for yourself. मगर करते ही नहीं लोग, because भाई प्लेसमेंट के लिए आए हैं. प्लेसमेंट बोले, अरे भाई प्लेसमेंट तो एक रास्ता है ना, 4 रास्ते हैं और अच्छा कमा लोगे, क्यों नहीं करना चाहते? अब बहुत लोगों को लगाओ यार बात तो सही कह रहा है. अगर ये लगा है, एनरोल फॉर माई प्रोग्राम कॉल हाउ टू बी स्कूल, बिकॉज उसका जो एक शुरुआत है वो है फ्रॉम देयर. वहां पे मैंने बेसिक आइडियाज दे दिए, एंड ऑल्सो बिकॉज यू प्लान टू गो फॉर योर MBA program, so that course is anyway important. Anyways, the idea for this video, my dear friends, was to give you clarity of how you need to think about whether should I retake CAT or not, what are the factors to decide whether to retake CAT or not. I hope you've got your final answer. If you have, please go down in the comments and let me know what you think about this video. I love reading your comments and replying to them. Whatever you want to say it. Thanks a lot and goodbye.